न्यूज़ 43 खास मुलाकात में हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो नजफगढ़ स्कूल के टॉपर रहे हैं और हर टॉपर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है और ऐसा ही एक सपना था इस टॉपर का भी, आईएएस ऑफिसर बनने का। लेकिन क्या हुआ जब ये सपना टूट गया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 43 का that I have been given an opportunity to share some moment of my life. I was born 20th April 1973 and we had shifted to Najafgarh in 1979 and I had completed my schooling Najafgarh number 1 Government Senior Secondary School. In fact, I had got first rank in 12th. After that, I have taken admission in Shivaji College in Raja Garden. I had completed my graduation. Then I had taken admission in Kirolmal College. I had started my post-graduation there. Meanwhile, I got to know about civil services. Immediately, I had started preparation for civil services. I kept on trying till 2001. In fact, finally I could not be selected there. Then it was shocking. Even I could not do anything till next 6 months. I kept on thinking, what next? What to do? Then finally I had decided to start teaching. मुझे लगा कहीं ना कहीं टीचिंग फिर ऐसा प्रोफेशन है जहाँ जितना भी हमारा जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो सफलता का हो असफलता का हो, उसे हम प्रॉपर अपने स्टूडेंट्स के साथ अप्लाई करके उनके करियर को कहीं ना कहीं जो है संवारा जा सकता है। And I had focused especially one thing, how we can get rid of our children from cramming system. कहीं ना कहीं जो रटने वाली जो एजुकेशन है वो हमारे बच्चों को उनका जो बॉर्न टैलेंट है उसको कहीं ना कहीं वो दबा देती है। क्लास सेकंड से लेकर के और आप वी कैन से अप टू ग्रेजुएशन, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन, कि बच्चे को किसी भी उसमें रटना ना पड़े, कुछ भी उसको इस ढंग से उसकी तैयारी कराई जाए, उसको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। Then I had started in 2001 and since then I have been teaching continuously. रटने के बाद क्या होता है, बच्चा जो है उसकी अपनी जो एनालिटिक पावर है, जो उसकी एनालिटिकल जो पावर है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, जिससे देखिए ओवरऑल एकेडमिक सेशन में कोई दिक्कत नहीं है, द स्टूडेंट कैन गेट मोर देन 90%, बट हमारा टारगेट एकेडमिक नहीं है। फाइनली स्टूडेंट हैव टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वहाँ फिर वो कहीं ना कहीं बच्चा जो है लास्ट मोमेंट पे जाके उसको लगता है कि नाउ he could not do properly last 8 years 10 years, वहाँ जाकर के उसको फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, जो उस टाइम पर उसको शॉर्ट आउट करना बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम होती है, टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है। एंड इसमें प्रॉब्लम फिर थोड़ा सा ही रहता है कि भाई बच्चों को अगर लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक एज फार एज क्वेश्चन ऑफ मदर टंग उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बच्चा अपने मैनेज कर लेगा। बट अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम कहीं आती है, स्पेशली इंग्लिश की हम बात करेंगे, तो द स्टूडेंट हैव टू इम्प्रूव देयर ग्रामर पोर्शन। वो कहीं से भी कर ले जहाँ से उसको लगे, बट पोजीशन ही आ जानी चाहिए कि वो बच्चा इंग्लिश में भी द स्टूडेंट मे राइट डाउन एक्सटेम्पो एनी पैराग्राफ, essay, letter, or even they could attempt all exercise after the chapter.
second thing, I would suggest all my students that I had mistaken during when I was preparing for civil services. I had avoided all subordinate services, and really it was my blunder. Just 3-4 years back, one of my students was selected as a sub-inspector in Delhi police. His name Gautam. He had informed me, first of all, when he got to know about the service selection, and he came to me. I asserted him specially that he should join the job. Actually, when he met me almost 10 years back, he wanted to join civil services. He wanted to become an IPS officer, and he had started preparation such as I had started. But just 4 years back, he was selected. So I asserted him, and finally he had joined, and still he has been preparing for civil services. So I would like to suggest to all the students, if okay, target should be good, and it should be big also. But meanwhile, if we are selected anywhere, then we should not drop and miss that opportunity. So I have been teaching for 20 years, and because somewhere हम ये फील भी करते हैं कि being Indian, being part of society, we should contribute to our society. वो अपने हिसाब से जिसका जैसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो उसमें बीइंग टीचर मुझे लगता है कि भाई अगर मैं सोसाइटी के किसी पार्ट को एजुकेट कर पाऊँ तो दैट विल बी प्लेजर फॉर मी। सुलेख दत्त ने बच्चों और पेरेंट्स के लिए सफलता के कुछ टिप्स भी बताए। आई वुड लाइक टू सजेस्ट नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो ऑल द पेरेंट्स कि बच्चों को फ्रीली डेवलप होने दीजिए, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं दीजिएगा उन्हें। स्ट्रेस इन सेंस कि अपनी कोई भी चीज़ उन पर थोपेंगे नहीं। पहली बात, बच्चे को अपना गोल डिसाइड करना चाहिए, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स को, गार्जियन को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग करके उसका करियर डिसाइड करने में उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन अपना कोई गोल उन पर थोपेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे की अपनी जो पावर है उसी के बिहाफ पर बच्चे को आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि वो अपना बेस्ट उसके अंदर कर सके। वो बेस्ट तभी कर पाएगा जब वो विलिंगली उसके अंदर लगेगा। दूसरा, अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई बच्चों को रटने वाला जो प्रोसेस है उससे बाहर निकालिएगा, क्योंकि बच्चा जब रटने वाले सिस्टम से बाहर आ जाएगा तो वो अपनी फिर जो एनालिटिकल जो उसकी पावर है उसे वो यूज़ कर पाएगा। उसे यूज़ करते समय उसका क्या होगा कि वो अपना उसमें बेस्ट कर पाएगा, भले उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको कि वो उस हिसाब से नहीं कर पाएगा जैसे वो रटने वाली विद्या से कर रहा था, लेकिन जितना वो करेगा ग्रेजुअली आप देखेंगे बच्चे में ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा आपको कि वो कंपैरेटिवली रटने वाले सिस्टम से अब वो ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है। तीसरा, बच्चे का ये भी दोनों के लिए है, बच्चों के लिए भी पेरेंट्स के लिए भी, कि टाइम मैनेजमेंट इट प्लेज ए क्रूशियल रोल थ्रू आउट लाइफ। कि होता क्या है कि पढ़ाई करते करते बच्चा प्रॉपरली ना पढ़ पाता है, ना वो अपना प्लेइंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ना वो और दूसरे इंटरटेनमेंट पे हो पाएगा। तो वो प्रॉपर हर चीज़ का एक टाइम टेबल जिसे बोलते हैं वो बना ले जाए। भले आपस में पेरेंट्स बच्चे अपनी इच्छा से बना लें, डिसाइड कर लें कि आई थिंक 6 to 7 आवर्स अगर बच्चा पढ़ लेता है मोर देन सफिशिएंट है। सब्जेक्ट वाइज डिसाइड कर लें उसको, और उसी हिसाब से वो बच्चा अपना और भी दूसरे जो इंटरटेनमेंट के टेलीविज़न है, चाहे प्लेइंग वाला पार्ट है, वो उसमें इंक्लूड कर ले जाए। तो उसमें क्या होगा कि तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, दे मस्ट एनालाइज बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे दैट दे आर बेटर देन यस्टरडे।
अगर बच्चा ये फील कर पा रहा है कि वो आज कल से बेटर है, इट मीन्स नाउ पर्टिकुलर समथिंग हैज़ बीन अचीव्ड। नहीं तो जैसा वो कल था वैसी आज है, इट मीन्स नथिंग हैज़ बीन अचीव्ड। एवरी डे ये एक हैबिट होनी चाहिए। एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड वो 5-7 मिनट ज़रूर एनालाइज करे इस चीज़ को कि उसने आज ये चीज़ अचीव कर ली है, बिकॉज द पर्टिकुलर जो थिंग्स हैं ये उसे कल नहीं आती थी, अब उसको आती हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि बच्चों को डेली एक अपना कैलकुलेशन उसकी होती रहेगी, उसको अपनी ग्रोथ का पता चलता जाएगा। पेरेंट्स को भी इस बारे में पता लगेगा कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो ग्रो कर रहा है। देखिए लॉकडाउन के बाद जैसे अब इट्स वेल नोन एंड ओपन सीक्रेट कि अभी स्कूल्स वगैरह सारे कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह अभी शायद पॉसिबल नहीं हो पाया और शायद आगे भी चांसेस कमी हैं, अभी पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। तो लेकिन एजुकेशन जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, तो ऑनलाइन अभी बेस्ट वे है उसका। इवन आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन। उसमें फ्रीली बच्चा कहीं से भी पढ़ ही सकता है। स्कूल्स की भी क्लासेस अभी ऐसी हो रही हैं, आगे भी शायद 2-3 महीने हो सकता है ऐसे ही चले। तो बच्चा उसमें स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि उसका वो मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज कर पाएगा। अपने जीवन की असफलता को बताते हुए वो थोड़ा भावुक भी हो गए। फाइनली इन 2001 व्हेन आई गॉट टू नो I could not be selected in civil services, and it was really very shocking, and actually I had worked hard. I kept on working hard till 7 years, and that time I could take any wrong decision, but I was suggested that everything was not finished. अभी बहुत लाइफ है। Although I had completed my 30 years, लेकिन उसके बाद भी अभी जीवन था। तब एक सजेशन ने मुझे नई प्रेरणा दी कि नहीं, ये जीवन जो मिला है ये प्रीशियस है, इसे ऐसे ही ख़राब नहीं करना है। भले ही एक कामयाबी नहीं मिली है तो उससे ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट टीचिंग, कि अब वो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्सों में देखूँगा जो कहीं ना कहीं मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। सुलेख जी से बात कर और उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव को जानकर एक बात तो हमें समझ में आती है कि हमें रुकना नहीं चाहिए। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हमसे जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम, टेलीफोन नंबर ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।